Hello students, I hope you all are fine and doing well. Students, I welcome you all in this video again. In this video we are going to learn about SOIGC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed 6 chapters. So right from first chapter to 6th chapter we have already completed, and then we have started with the chapter number 7, that is correspondence with debenture holders. So 7 chapters हमारा start हुआ था जहाँ पे we have completed 3 parts. So in part 1 we have discussed about precautions to be taken by the secretary while corresponding with the debenture holders. And then in part 2 we have discussed about circumstances under which a secretary has to enter into correspondence with debenture holders. Alright, and then we have started with the main part, that is letter. And in part 3 we have discussed about the letter, okay, that is letter of allotment of debentures. Okay, तो अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो, बिकॉज लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो ये हमने फिनिश किया है हमारे लास्ट वीडियो में. Now in this video students we are going to start with the payment of interest. Now you all know that when you talk about debenture, so debenture capital is a loan or borrowed capital. That means ये उधारी वाला पैसा होता है. That means if a company is taking money from the debenture holder, then after certain period of time company has to repay the amount to the debenture holder. That is why it is a loan. जिस तरीके से आप लोग लोन लेते हो बैंक से, that means if you required money you can take loan from the bank, but you have to repay those amount to the bank again along with the interest. Okay, that is why इसको हम बोलते हैं लोन. लोन का मतलब होता है borrowed capital, उधारी वाला पैसा. Okay, so here also company is whenever company required money, company can issue debentures. So जब भी company debenture issue करके जो पैसा receive करेगी, that is called loan. एक borrowed money होता है because company has to repay the amount to the debenture holder again. Okay, so यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई है जो हमने बेसिक्स में पढ़ा था about the debentures. So debenture is a debt fund, debenture is a borrowed fund, debenture is a loan. The person who purchased the debenture of the company, that person is known as debenture holders. Debenture holders are the creditors of the company. On behalf of the investment they receive profit in a form of interest, and the interest of debenture holder is fixed. ये सारी चीज़ें हमने जो पढ़ा था वो आप सेम टू सेम भी अगर यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा. ओके, क्योंकि वो जो हमने पढ़ा है वो सेम है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, खाली सेंटेंस आगे पीछे है, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स. ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग विद द मेन पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो. नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. अभी हमको पता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट. सो ऑन बोरोड मनी द अमाउंट विच कंपनी पे टू द डिबेंचर होल्डर्स, टू द डिपॉजिटर्स, टू द बॉन्ड होल्डर्स, टू द बैंक, टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट. जब भी कंपनी पैसा उनको पे करती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट अमाउंट. ओके, चलो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. फर्स्ट, डिबेंचर कैपिटल इज़ अ लोन. हमको पता है ये एक तरीके का लोन है, और बोरोड कैपिटल ऑफ अ कंपनी. लोन है और बोरोड कैपिटल है. तो आपको अगर इसको इस तरीके से लिखना है, डिबेंचर इज़ अ बोरोड फंड, डिबेंचर इज़ ए डिबेंचर कैपिटल इज़ अ लोन कैपिटल, डिबेंचर इज़ अ बोरोड मनी, डिबेंचर इज़ अ डेब्ट फंड. तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हो. ओके, चलो. डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. दैट मीन्स ये लोग कंपनी के लिए कर्जदार होते हैं. ओके, आगे देखते हैं. ऑन बिहाफ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट दे रिसीव फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. इनका इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता है. ओके, चलो यहाँ पे आगे देखो. इंटरेस्ट इज ए डेप्ट. डेप्ट मतलब कर्जा. ओके, कर्जा होता है कंपनी के ऊपर, बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर इज फिक्स्ड. दैट मीन्स बाय हुक और बाय क्रूक कंपनी हैज टू रीपे द अमाउंट टू द डिबेंचर होल्डर्स. इंटरेस्ट का अमाउंट जो होगा कंपनी को वो डिबेंचर होल्डर को देना ही होगा. दैट इज वाई इट इज़ अ डेप्ट. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन प्रॉफिट. तो मैंने आपको बताया था वेदर कंपनी अर्न अ प्रॉफिट और कंपनी अकर्ड अ लॉस, इन एनी सिचुएशन कंपनी हैज़ टू गिव इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर. ओके, क्योंकि इंटरेस्ट कैसा होता है? फिक्स्ड होता है. तो डिबेंचर होल्डर्स को, पब्लिक डिपॉजिटर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को, बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, इनको आपके प्रॉफिट से मतलब नहीं होता है. ओके, जब भी इंटरेस्ट पे करना होगा वो आपको करना ही होगा. आपको उस कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, उससे उसको मतलब नहीं होता है. ओके, कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. तो कंपनी जब भी इंटरेस्ट पे करती है वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे करती है, सेंड अलॉन्ग विद दिस लेटर. तो लेटर के साथ में कंपनी ये
इंटरेस्ट जो है वो पे करना होगा कंपनी को टू द डिबेंचर होल्डर. ओके, दिस लेटर कंटेन्स डिटेल सच एस. अब ये लेटर के अंदर क्या क्या कंटेन होगा, डिटेल क्या क्या होगी, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. बिकॉज इफ़ यू नो ऑल सच बेसिक थिंग्स, तो ही आप जब लेटर सीखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा. ओके, तो क्या क्या होगा लेटर के अंदर, हम पहले वो देखते हैं. नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स, मतलब कितना डिबेंचर्स आपने परचेज किया है. सपोज यू आर द डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, तो आपने 10 डिबेंचर परचेज किया होगा, या 15 किया होगा, या 20 किया होगा, 30 किया होगा. तो जितना भी डिबेंचर आपने परचेज किया है, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स, वो पहले तो डिटेल में लिखना होगा इन द लेटर. पहला चीज़, डिस्टिंक्टिव नंबर. जिस तरीके से मैंने आपको बताया था दैट एवरी शेयर हैविंग दैट डिस्टिंक्टिव नंबर, सो इन अ सेम वे एवरी डिबेंचर ऑल्सो हैविंग दैट डिस्टिंक्टिव नंबर. ओके, मतलब हर एक सिक्योरिटी का अपना एक नंबर होता है. चलो, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल. ग्रॉस अमाउंट मीन्स व्हाट, जैसे अभी हम लोगों ने सीखा था फाइनल अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट जब हम लोग क्लोज करते हैं तो वहाँ पे हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, तो वहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. फिर नीचे उसको लिखना पड़ता है हमको प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. उसमें से सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद में जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं नेट प्रॉफिट. ओके, तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है, एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल. टीडीएस. टीडीएस का मतलब क्या होता है, टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब जो भी टैक्स पे करना होगा वो पे करना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल एसेट्रा. फिर टैक्स पे करने के बाद में जो भी अमाउंट बचेगा दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, नेट अमाउंट. ओके, तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करना पड़ेगा इन द लेटर. तो बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड. तो दिस इज इम्पॉर्टेंट. बोर्ड रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. सो बोर्ड का रेजोल्यूशन लेना पड़ेगा बिफोर गिविंग द इंटरेस्ट टू द डिबेंचर होल्डर्स. ओके, द कंपनी पेज इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. कंपनी इंटरेस्ट जब भी पे करेगी वो इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे होगा. जस्ट 1 सेकेंड. कंपनी विल पे इंटरेस्ट थ्रू द इंटरेस्ट वारंट और बाय इलेक्ट्रॉनिकली. इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स व्हाट, ECS एंड NEFT के थ्रू. ECS मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, एंड NEFT मीन्स व्हाट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. ओके, उसके थ्रू. तो हम लोग दोनों ही लेटर देखेंगे आज के वीडियो में. सो पहले फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंटरेस्ट वारंट. ओके, दैट मीन्स पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट. चलो, लेट्स स्टार्ट नाउ. एज यू कैन सी हियर दिस इज द लेटर विच इज़ गिवन इन योर बुक. आपका बुक का सेम टू सेम यहाँ पे आपको दिखेगा. सो लेट्स स्टार्ट नाउ स्टूडेंट्स. सो फर्स्ट हमने फॉर्मेट पढ़ा था इन चैप्टर नंबर 6 पार्ट 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन नाउ. सो इन दैट वी हैव लर्न अबाउट दैट फर्स्ट you have to write the name of the company, address of the company and CIN number of the company. हो गया, ये हमारा 1 पे हो गया. एंड देन फोन नंबर ऑफ द कंपनी, fax number of the company, reference number of the company. After that you have to leave one line here. Then you have to go to your right side. Then you have to write website of the company, email ID of the company and date. Which date? Today's date. जिस दिन आप लेटर लिखोगे वो डेट यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा. एंड आफ्टर दैट अगेन यू हैव टू लीव वन लाइन हियर आफ्टर रेफरेंस. देन यू हैव टू राइट नेम ऑफ द रिसीवर. दैट मीन्स नेम ऑफ द रिसीवर टू हुम कंपनी सेंडिंग द लेटर. जिसको हम लेटर सेंड करेंगे उस पर्सन का नाम. तो यहाँ पे हम लेटर किसको भेज रहे हैं, टू द डिबेंचर होल्डर. डिबेंचर होल्डर को लेटर जा रहा है. दैट इज़ वाई वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द पर्सन. जो भी कंपनी का डिबेंचर होल्डर होगा उस कंपनी का नाम एंड उस पर्सन का नाम, सॉरी, उस पर्सन का नाम और साथ में उसका एड्रेस. ओके, तो यहाँ पे किसको हम भेज रहे हैं लेटर, मिसिस दिव्या सलूजा. एंड उसका एड्रेस है अदिति अपार्टमेंट, MG रोड, मीरा रोड ईस्ट, मुंबई 401107. ओके, तो ये हो गया नेम ऑफ द रिसीवर, एड्रेस ऑफ द रिसीवर. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट. एंड सब्जेक्ट you will always get from the question. Okay, so the subject is payment of interest. We are paying the interest on debentures. Debentures को we are on debentures we are paying the interest. Okay, so subject भी आपका वैसे ही होगा. Now यहाँ पे आपने क्या लिखा है, मिसेस दिव्या सलोजा. That means ये एक फीमेल है. So that is why salutation में आप हमेशा उसके उस हिसाब से ही लिखोगे. Now dear madam. ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने सलूजा लिखा है, दिया सलूजा, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डियर मैडम. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अभी. नाउ एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ दैट यू हैव टू
कंसीडर योर सेल्फ दैट यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। और जो भी सेक्रेटरी लेटर में लिखेगा वो अपनी मर्जी से नहीं लिखता है, सेक्रेटरी को जो है मैनेजमेंट या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं लिखने के लिए लेटर, तो सेक्रेटरी लिखता है। ओके तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ द लेटर आपको खुद को सेक्रेटरी अज्यूम करना होगा दैट यू आर द सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी। तब आप लिखोगे तो आपका प्रॉपर जाएगा और आपको समझ में आएगा एंड आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में। ओके, आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ passed a resolution in the board meeting held on 5th June 2019। अब यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है डेट को देखकर, तो यहाँ पे हमने क्या बोला, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ दैट whenever company is declaring the interest, whenever company is declaring the dividend, whenever company is issuing a bonus shares, whenever company is going to issue a right issue, ये जो भी केसेस होंगे, जो भी चीज़ होगा, इस केस में फर्स्ट कंपनी को परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम द शेयर होल्डर। सो फॉर देट दे हैव टू कंडक्ट अ मीटिंग, तो मीटिंग रखना ही पड़ता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जो भी आप लेटर में लिखोगे, जो भी डिसीजन कंपनी ने आपको बोला है, जो भी चीज़ लिखने के लिए बोला है, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं लिख रहे हो, ये आपको बोला गया है। ओके, वेरी सिंपल। चलो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो डेट आएगा, पास का डेट आएगा। पास का डेट इसके लिए आएगा बिकॉज यहाँ पे हम लोग का मीटिंग ऑलरेडी हो चुका है, मीटिंग में हमने एक रेजोल्यूशन को पास किया था। ओके, तो 5 जून 2019 को एक मीटिंग हुआ था हमारा, मतलब जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो, यहाँ पे जो लेटर का डेट दिया हुआ है, इसके एक दिन पहले ही क्या हुआ था, मीटिंग हुआ था रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन योर 100 डिबेंचर्स है, किसके पास, दिया सलूजा के पास 100 डिबेंचर्स है, ऑफ 10% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 100 ईच। नॉन कन्वर्टेबल मतलब हमको पता है कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर्स विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ओके, तो यहाँ पे आपने पूरा डिटेल डाल दिया कि 100 डिबेंचर्स है उसके पास और 10% इंटरेस्ट है उसके ऊपर, और कौन सा टाइप का डिबेंचर है, दैट इज़ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, जिसका फेस वैल्यू कितना है, 100 रुपीज़ है। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। यहाँ पे टेबल के अंदर द डिटेल ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू यू आर एस फॉलोस। तो पहला दिया है फोलियो नंबर, नंबर 1, तो यहाँ पे आप डमी नंबर लिखोगे कुछ भी। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितना ऊपर लिखा था आपने 100, तो यहाँ पे भी आपको 100 लिखना पड़ेगा। एंड देन पॉइंट नंबर 3 पे आपने लिखा है डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू, ये 601 से लेकर 700 है। आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल कम टू नो कि यहाँ पे 100 डिबेंचर ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 100 लिखा है, तो ये जो नंबर होगा इसके बीच का गैप भी 100 का ही होना चाहिए। ऑल राइट, देन पॉइंट नंबर 4 पे वी हैव टू राइट ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज ₹1000। देन 5 पे आपका आएगा TDS दैट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ओके, 10% ऑन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम लोग TDS कुछ भी पे नहीं कर रहे, इसके लिए यहाँ पे नील लिखना है और हमेशा हम लोग यहाँ पे इसको नील ही लिखेंगे। देन उसके बाद में नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपीज़, टैक्स कटा नहीं, इसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे लिख देने का। देन उसके बाद में आपको लिखना पड़ेगा इंटरेस्ट वारंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप कुछ भी IW करके कोई भी एक नंबर लिख दोगे डमी, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा। देन इसके बाद में आपको लिखना है दैट द इंटरेस्ट वारंट इज एनक्लोज्ड हियर विथ, तो यहाँ पे वारंट जो है वो भी क्या हो रहा है, एनक्लोज हो रहा है, मतलब यहाँ पे अटैचमेंट होगा। ओके, एनक्लोजर क्या होगा, अटैचमेंट होगा। इनक्लोजर किया मतलब अटैचमेंट किया, किस चीज़ का अटैचमेंट किया, इंटरेस्ट वारंट का, तो इंटरेस्ट वारंट का नाम नीचे आना चाहिए। पॉइंट नंबर 10 पे हमने जो सीखा था। ऑलराइट, सो प्लीज़ डिटेक्ट द इंटरेस्ट वारंट अलोंग द परफोरेटेड लाइन, तो ये हमने यहाँ पे जो अटैच करके रखा है इंटरेस्ट वारंट, वो भी आप एक बार देखो। एंड देन ये लिखने के बाद में वी हैव टू राइट थैंकिंग यू, एक लाइन छोड़ने के बाद में। देन इन योर राइट साइड यू हैव टू राइट योर्स फेथफुली, उसके नीचे आएगा फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, दैट मीन्स नेम ऑफ द कंपनी। ओके, साइन मिसिस सिमरन उनेचा, दैट मीन्स शी इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। ओके, एंड देन you have to go to your left side and you have to leave one line, then you have to write enclosure, enclosure का you can write ENCL। ओके, इंटरेस्ट वारंट आगे लिख दिया हमने क्योंकि इसको हमने अटैचमेंट किया था साथ में। ओके, ऑलराइट, सो बहुत ही सिंपल था इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट थ्रू इंटरेस्ट वारंट। इंटरेस्ट वारंट के थ्रू हमने क्या किया, पेमेंट किया इंटरेस्ट का टू द डिबेंचर होल्डर। तो
तो ये लेटर हो गया हमारा। इसके आगे हमको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वहाँ पे हमने इंटरेस्ट वारंट के थ्रू पे किया और यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे थ्रू ECS और थ्रू NEFT। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड दैट इज ECS और NEFT एक्सेट्रा। ओके, चलो आगे देखते हैं। सेम नेम ऑफ द कंपनी बालाजी स्टील लिमिटेड, एड्रेस ऑफ द कंपनी एंड CI नंबर ऑफ द कंपनी, सेम चीज़ हो गया। देन यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू गो टू योर लेफ्ट साइड, हियर यू हैव टू राइट फोन नंबर ऑफ द कंपनी, फैक्स नंबर ऑफ द कंपनी एंड रेफरेंस नंबर ऑफ द कंपनी। ओके, ये होने के बाद में अगेन यू हैव टू गो टू योर राइट साइड, उसके अपोजिट में आ जाओ, हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ, हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ द वेबसाइट ऑफ द कंपनी, ईमेल ID ऑफ द कंपनी एंड डेट, विच डेट, टुडेज डेट, जिस दिन आप लोग लेटर लिखोगे उसका सेम डेट आपको यहाँ पे लिखना होगा, उसी दिन का डेट यू कैन राइट हियर। ओके, देन अगेन you have to go to your left side, then you have to leave one line and then you have to write Mrs. Amruta Dixit, that means she is the receiver, debenture holder. Okay, so name of the receiver and address of the receiver यहाँ पे लिख दिया। Again you have to leave one line, then you have to write the subject। अब सब्जेक्ट में क्या होगा, किसके थ्रू पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ECS या NEFT के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो सिंपल से यहाँ पे यू हैव टू राइट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ECS और थ्रू NEFT। आप कोई भी एक नाम लिख सकते हो यहाँ पे। ओके, या आपको फुल फॉर्म भी लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। चलो, आफ्टर सब्जेक्ट यू हैव टू लीव वन लाइन, देन यू हैव टू राइट सैल्यूटेशन, यहाँ पे फीमेल का नाम था, दैट इज़ वाई यू हैव टू राइट हियर डियर मैडम। और यहाँ पे मेल पर्सन का नाम लिखोगे तो यहाँ पे यू कैन राइट डियर सर। ओके, या फिर रिस्पेक्टेड सर। सो आई एम इंस्ट्रक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कन्वे टू यू दैट द बोर्ड हैज़ पास्ड अ रेजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग हेल्ड ऑन 10th March 2019। यहाँ पे डेट देखो 12 है, मतलब पहले मीटिंग हुआ था, 2 दिन पहले मीटिंग हो चुका है। ओके, चलो, finalizing to pay interest at 10% on redeemable debentures of 100 each for the year ending 31st March 2019। तो यहाँ पे redeemable debentures, redeemable कौन सा होता है, redeemable debentures are those debentures where a company will pay repay the amount to the debenture holder। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग redeemable debenture, जो चीज़ redeem हो सकती है उसको हम लोग बोलेंगे redeemable। ओके, देन कंटिन्यू, your company has complied with all the provisions relating to the payment of interest on debentures। so यहाँ पे आपको लिखना है that your company has complied, यानी follow all the rules and regulations। okay, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एस फॉलो। सो सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट नहीं है, इसके लिए यहाँ पे इंटरेस्ट वारंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेटर बोल रहे हैं हमको लिखने के लिए। ओके, चलो, डिटेल ऑफ इंटरेस्ट पेएबल टू यू आर एस फॉलोज। नंबर 1, रजिस्टर नंबर लिख दिया डमी, नंबर्स ऑफ डिबेंचर्स लिख दिया 100, डिस्टिंक्टिव नंबर फ्रॉम टू 2 लिख दिया। ओके, देन ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1000 रुपीज़ है। फिर उस पर कोई टैक्स कट रहा है क्या, TDS नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, दैट इज़ वाई नील लिख देने का। एंड देन पॉइंट नंबर 65 वी हैव टू राइट नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना हुआ, टैक्स तो कुछ कटा नहीं, तो 1000 पूरा का पूरा किसको मिलेगा, अमृता दीक्षित को मिलेगा। ओके, then here you have to write interest will be paid by electronic transfer, that is by crediting the said interest to your bank account as per details provided by you to the company। तो जो भी डिबेंचर होल्डर ने कंपनी को डिटेल दिया होगा अबाउट द बैंक, तो उसमें ऑटोमेटिकली अमाउंट क्या होगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, देन ये होने के बाद में you have to leave one line, then you have to write thanking you, and here you have to write yours faithfully for बालाजी स्टील लिमिटेड। तो यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो लिख दिया, एंड देन साइन मिस्टर निखिल दीक्षित, ही इज कंपनी सेक्रेटरी, तो नीचे लिख दिया कि कंपनी सेक्रेटरी है। ओके, सो दिस मच ओनली। तो इजी है बहुत, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। आपको कोई भी वर्ड नहीं समझा होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो स्टूडेंट्स यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, so till then, thank you very much all, take care।